When you look at regulation of respiration, it is mostly covered under three headings. That is, you have your neural regulation, chemical regulation, and reflexes. इस वीडियो में we will look at our reflexes and our neural regulation. Neural regulation में हमें components देखने होते हैं और our centers, and we primarily see four headings के अंदर. You have your pons, medulla, your higher centers, and your non-chemical receptors. Pons में we have our pneumotaxic center and our apneustic center. Medulla में we have DRG, VRG, which is dorsal respiratory group and ventral respiratory group of neurons, and the pre-Bodzinger complex. Higher centers में we'll see the limbic system and cerebral cortex. Then non-chemical receptors में we have irritant receptors, J receptors and stretch receptors. ये तीन primarily हमें study करने हैं, हमारे आंसर में लिखने हैं. Alrighty. So after looking at that introduction, let us move on to all the centers individually and देखते हैं कि उसमें क्या क्या लिखना है. So first of all, we look into the medullary centers. तो उसमें हमारा dorsal respiratory group and ventral respiratory group आता है. Our dorsal respiratory group is located in the nucleus tractus solitarius. It is responsible for quiet breathing. मतलब normally जो हम breathing करते हैं उसमें dorsal respiratory group responsible होता है. It only contains inspiratory neurons जो inspiration कराते हैं and alpha motor neurons को trigger करते हैं spinal cord में जो हमारे inspiratory muscles तक impulse लेके जाते हैं. Then we have कि वो किससे inhibit होता है and किससे excite होता है. तो it is inhibited by the cerebral cortex, the pneumotaxic center and the vagus nerve के stimuli. It is excited by the apneustic center. Now we look at the ventral respiratory group. The ventral respiratory group is located in the ventrolateral medulla. It has both inspiratory and expiratory neurons. But ये normal breathing में और quiet breathing में silent रहता है. इसका function नहीं होता है. जब forced breathing होती है तब हमारा ventral respiratory group active होता है. It controls the accessory muscles of inspiration. Then a very important thing that you need to write in your answer is the pre-Bodzinger complex. Pre-Bodzinger complex is basically the pacemaker of respiration. मतलब जैसे pacemaker of heart होता है ऐसे नोट, वैसे ही ये हमारा एक rhythm of impulses maintain करके रखता है. तो let's say इसने inspiration चालू करा and then एक cut off करेगा and then वापस next inspiration को start करेगा. हमें रेस्पिरेशन एक बेसिक चीज समझनी होती है कि इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, उसमें हमें इम्पल्सेस लगती हैं, whereas एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस. जैसे ही इंस्पिरेशन कट होता है, बिकॉज हमने जो मैकेनिकल फंक्शनिंग ऑफ लंग्स पढ़ा है उसमें पैसिवली लंग्स रिकॉइल करते हैं एंड हमारा पैसिवली एक्सपिरेशन होता है, राइट. देन वी विल मूव ऑन टू द पोंटाइन सेंटर्स. पोंटाइन सेंटर्स में भी दो हैं, which is the pneumotaxic center and the apneustic center. Pneumotaxic center upper pons में present होता है. It increases the rate of respiration. It causes a switch between inspiration and expiration, and it limits inspiration. क्यों? It limits inspiration because हमने देखा था कि वो inhibit करता है हमारे DRG को, and it switches between inspiration and expiration. Along with this, एक और हमने क्या पढ़ा था, हमारा pre-Bodzinger complex, because वो normal rhythm maintain करने के लिए responsible है, तो वो भी हमारा cyclic maintenance में switching करता है between inspiration and expiration. Then we have our apneustic center. It is located in the lower pons. ये depth of inspiration increase करता है by prolonging inspiration. हमने क्या पढ़ा था कि this is the one thing जो हमारे DRG को excite करता है, right? And DRG का क्या काम है? Inspiration कराना. तो जब वो से एक्साइट करेगा तो वो हमारी इंस्पिरेशन को प्रोलॉन्ग करेगा, कॉजिंग अ इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, एंड इट इज बैलेंस्ड बाय द न्यूमोटैक्सिक सेंटर. इतना लिखने के बाद अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट दैट पीपल मिस इज द डायग्राम. यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ऑल ऑफ दी सेंटर्स. तो वो बहुत सिंपल है. वी विल ड्रॉ द मिड ब्रेन, देन द पॉन्स एंड द मेडुला, राइट. ऊपर हमें पता है कि हमने पढ़ा है हमें पॉन्स में, विच ये पॉन्स है, इसमें हमें हमारा ऊपर के तरफ में न्यूमोटैक्सिक सेंटर बनाना है एंड नीचे की तरफ में एपन्यूस्टिक सेंटर बनाना है. देन हमारा उसके नीचे यहाँ पे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप बनाना है एंड आगे की तरफ में वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप बनाना है. तो व्हेन वी लुक एट इट लाइक दिस, हमारा जो पॉन्स है उसमें अपर पॉन्स में हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है
न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, लोअर पॉन्स में हमारा एपन्यूएस्टिक सेंटर है, एंड देन हमारे मेडुला में पीछे की तरफ में हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, एंड आगे की तरफ में हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है. यही डायग्राम बनाना है एंड यू गेट मार्क्स फॉर इट. ओके, अब हम इस फ्लो चार्ट को स्टडी करते हैं एंड देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं एंड हमें कैसे कैसे इनहिबिशन एंड एक्साइटेशन शो करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लुक एट पॉन्स, मेडुला एंड मसल्स. इनके बीच में हम ऐसे डिविजन क्रिएट कर देंगे फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. वी विल पुट इन ऑल द कॉम्पोनेंट्स जो अभी हमने पढ़े, विच इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड द एपन्यूएस्टिक सेंटर इन पॉन्स. In medulla, we have a pre-Botzinger complex, our DRG and our VRG. DRG में we have our inspiratory group of neurons, and VRG में we have both inspiratory and expiratory neurons. Muscles में we will write our inspiratory muscles and our accessory muscles. Alright, now we look into the normal inspiration, quiet breathing में. Quiet breathing में क्या होगा, हमारा जो medulla है उसमें सब functions होंगे. हमारा pre-Botzinger complex हमारा rhythm maintain कर रहा है, हमारी cycle start करता है. तो प्री-बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स ने इम्पल्स दी डीआरजी को. डीआरजी के इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स स्टिमुलेट हुए. ये इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स हमारे इंस्पिरेटरी मसल्स के पास जाएंगे एंड इनको इम्पल्स देंगे कि चालू हो जाओ. किससे जाएंगे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होंगे उनके थ्रू. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्स्ड ब्रीदिंग. फोर्स्ड ब्रीदिंग में हमने क्या कहा था कि अभी तक तो हमारा वीआरजी साइलेंट था. जैसे ही फोर्स्ड ब्रीदिंग स्टार्ट हुई ये साइलेंस चला गया. जब हमें फोर्स ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है तो हमें इम्पल्सेस आती हैं. कहाँ, पोंटोमेडुलरी सेंटर्स पे हमें इम्पल्सेस आती हैं. तो ये पोंटोमेडुलरी सेंटर पे इम्पल्स फाइनली हमारा डीआरजी पे आता है. डीआरजी के इंस्पिरेटरी मसल्स से इम्पल्स ओवरफ्लो होती है एंड ये इम्पल्स जाती है हमारे वीआरजी के इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स पे. ये इंस्पिरेटरी न्यूरॉन हमारे एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स ऑफ वीआरजी को इनहिबिट कर देता है एंड इनको इनहिबिट करने के बाद ये हमारे इंस्पिरेटरी एंड एक्सेसरी मसल्स को एक्साइट करता है. क्या करने के लिए, फॉर फर्दर प्रोलॉन्गिंग द इंस्पिरेशन. देन ये एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स एक पॉइंट पे हमें हमारी इंस्पिरेशन रोकनी पड़ेगी. उस टाइम पे ये जो एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं ये हमें इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स को काउंटर इनहिबिट करते हैं. तो यहाँ पे दोनों तरफ से हमारा इनहिबिशन चलता है. देन हम सारे पॉन्स के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे कि वो इसे कैसे अफेक्ट करते हैं. हमने पढ़ा था दैट हमारा जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन. वो रेट कैसे बढ़ाएगा, इंस्पिरेशन को जल्दी कट ऑफ करके. तो वो हमारे डीआरजी को इनहिबिट करेगा. जैसे ही वो डीआरजी को इनहिबिट करेगा हमारा जल्दी कट ऑफ होगा इंस्पिरेशन एंड नेक्स्ट साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा. हमने क्या बढ़ा था, हमारा एपन्यूएस्टिक सेंटर डेप्थ बढ़ाता है. डेप्थ कैसे बढ़ाएगा, इंस्पिरेशन को प्रोलॉन्ग करके. तो अगर इसे इंस्पिरेशन प्रोलॉन्ग करनी है तो वो हमारे डीआरजी को पॉजिटिव इम्पल्स देगा कि तुम देर तक काम करो. उससे हमारे इंस्पिरेटरी मसल्स पे देर तक इफेक्ट होगा एंड इंस्पिरेशन देर तक चलता रहेगा. सो बेसिकली दिस इज योर न्यूरल रेगुलेशन. ये फ्लो चार्ट बना के आना है एंड यू विल गेट योर मार्क्स. ये स्विच वी विल लुक इनटू अगेन. द स्विच बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन प्री-बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स से होता है जो मेट्रोनोम की तरह काम करता है एंड रैम्प लाइक सिग्नल्स भेजता है. एंड अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो ऑलवेज वर्किंग होता है अलॉन्ग विद प्री-बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स एंड ईच साइकिल पे कट ऑफ करता है हमारे इंस्पिरेशन को. ओके, तो जैसे अभी हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा कि हमें इम्पल्सेस आएंगी जब फोर्स इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, जब फोर्स एक्सपिरेशन की ज़रूरत है. पर हमारे पोंटोमेडुलरी सेंटर्स को पता कहाँ से चलता है कि हमें ये सब करना है. उसके लिए हम दो चीज़ें देखेंगे. एक हम देखेंगे हमारे हायर सेंटर्स में क्या क्या होता है एंड हमारे रिसेप्टर्स में क्या क्या होता है. फर्स्ट वी विल लुक इनटू आवर हायर सेंटर्स. उसमें हम दो पार्ट्स देखेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड आवर लिम्बिक सिस्टम. सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन. मतलब जब आपको वॉलेंट्री एपनिया करना है, मतलब ब्रेथ होल्डिंग, उसमें हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स वर्क करेगा. देन वी हैव आवर लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम इज इमोशनल रिस्पॉन्सेज. जैसे फियर होता है तो आप हाइपर वेंटिलेट करने लगते हो, पेन में ब्रीदिंग ऑल्टर हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर लिम्बिक सिस्टम. देन वी विल मूव ऑन टू आवर रिसेप्टर्स. पहले हमने देखे थे कि काफ़ी सारे रिसेप्टर्स हैं. मेनली हमें 3 रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना होता है एंड एग्जाम में लिखना होता है.
we have our stretch receptors, our J receptors and our irritant receptors. Stretch receptors में हम Hering-Breuer reflex पढ़ेंगे. Hering-Breuer reflex prevents over-inflation of lungs. तो हमारे जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है. ये स्मूथ मसल वेगस में इम्पल्स भेजता है जब वो ओवर स्ट्रेच हो जाता है. फिर ये वेगस हमारे पोंटोमेडुलरी जंक्शंस के पास जाता है और वहाँ पे कहता है कि रोको, इंस्पिरेशन को रोको. दैट इज इट इनहिबिट्स इंस्पिरेशन एंड इससे हमारा ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स रुकता है. देन वी हैव आवर जे रिसेप्टर्स. जे रिसेप्टर्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ लंग्स देखते हैं क्या होता है. ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारा एल्वियोलाई है. इन दोनों के बीच में इंटरस्टिशियम प्रेजेंट होता है. इस इंटरस्टिशियम में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है. जब इस फ्लूइड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पे हमारे जे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ये जे रिसेप्टर्स भी हमारे पोंटोमेडुलरी सेंटर्स को इम्पल्सेस भेजते हैं. कब भेजेंगे? जब पल्मोनरी एडिमा होगा, एम्बोलाई होगा, जब ओवरफिलिंग हो जाएगी मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड की. क्या कराएगा वो? एपनिया कराएगा, ब्रीदिंग को रोक देगा, फॉलोड बाय टैकिपनिया, रेट एंड डेप्थ बढ़ा देगा इंस्पिरेशन की. देन कब होगा ये? जब ऑल्टीट्यूड में इंक्रीज होगा एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज. देन वी हैव इरिटेंट रिसेप्टर्स. इरिटेंट रिसेप्टर्स हमारे पूरे ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं. दैट इज योर ट्रैकिया, योर ब्रोंकाई एंड योर ब्रोंक्यूल्स. ये कफ में होते हैं, स्नीज में होते हैं एंड डीग्लुटेशन में होते हैं. एपनिया कराते हैं एंड देन फोर्स्ड एक्सपिरेशन कराते हैं कि अगर कोई चीज़ ब्लॉक करी है एंड इरिटेंट रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करी है तो उसको थ्रो आउट करें हम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से. एंड डीग्लुटेशन के टाइम पे एपनिया होता है सो दैट फूड डज नॉट एंटर द ट्रैकिया. So we've come to the end of our video. I hope that this video was simple enough for you to get an understanding about neural regulation because this is a topic that I struggled with too. And I think making a video about it really helped me for my university exams as well. Write this answer and also I'll put in all of these flowcharts at the end of my video so that you can infer from it and make your own notes so that you have a sense of understanding further for writing your paper. Thank you so much.